Hello everyone. Few days back, GST Council issued one circular number 189 on the recommendation of 48 GST Council meet, in which it clarified GST rate on certain items. Today, this video will be focused only on GST rate on FRAMs. Okay, this particular entry was given in paragraph 5. This particular clarification was given in paragraph 5 of the circular number 189 of which the heading was applicability of GST on snack pellets manufactured through extrusion process, and in bracket it was written such as FRAMs. Okay, so before that we should know what is FRAMs. भाई FRAMs क्या होते हैं? Basically it's ready to cook food which is fried and then served for eating. It's in different shape like बैडमिंटन, हेक्सागन, ट्रायंगल, ये अलग अलग शेप्स में होता है. तो आप देखे होंगे कई बार पार्टीज वगैरह में पापड़ के पास रखा हुआ रहता है. तो टिल नाउ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाज कि दे वर ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज फ्राइम्स, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पापड़ बोल के सेल कर रहे थे. एंड पापड़ इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी में पापड़ एग्जेम्प्टेड है, तो वो लोग इसको एग्जेम्प्टेड की तरह ट्रीट कर रहे थे. वेरी फ्यू इन दिस इंडस्ट्री वेर गिविंग टैक्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. विल डिस्कस वो लोग किस तरह से क्या टैक्स दे रहे थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वेर ट्रीटिंग इट लाइक अ papad. Now, this particular entry has created lots of confusion between the taxpayers, because till the point if it was written applicability of GST on snack pellets manufactured through extrusion process, then things were not so problematic. But as now they have mentioned the word FRAMs, because FRAMs, whenever you go to the market and ask for FRAMs, they will give that product only of different shapes, badminton, triangle and hexagon. भाई लोग अभी इसको पापड़ बोल के बेच रहे हैं, लेकिन दो बातें हैं. अगर आप दुकान में जाके फ्रैम्स मांगोगे तो लोग कभी पापड़ नहीं देंगे, और पापड़ मांगोगे तो कभी फ्रैम्स जो डिफरेंट शेप्स के वो नहीं देंगे. सो बेसिकली टिल नाउ द एंट्री वाज नॉट क्लियर, क्लासिफिकेशन वाज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली डन बाय द टैक्स पेयर्स. दिस इज एज पर माई ओपिनियन. लेकिन ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया था. मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वेर डूइंग दिस as selling this product particularly as papad, और उसको exempted की कैटेगरी में रख रहे थे. Now let us come to the clarification. What clarification is given by the circular? The circular is clearly saying कि if you are manufacturing FRAMs through extrusion process. Now extrusion is a special kind of process in which there is a huge pressure created and a die is located at the nozzle from which it is pressurized, and then comes the product of different shapes and size. Like you can say pasta. Pasta is specifically manufactured with the extrusion process. But this particular FRAMs, this can be manufactured through extrusion process also. But many manufacturers are producing this without extrusion process. So now there is a confusion कि भाई इस पे क्या GST रेट होगा और किस क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा. Okay, and there is one more school of thought who are saying that this particular FRAMs which is not manufactured through extrusion process will come under the category of pellets. Okay, so we'll discuss everything one by one. So first of all, suppose if you are manufacturing FRAMs, भाई पापड़ तो मत बोलिए उसको, ठीक है. FRAMs, अगर आप फ्रैम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं थ्रू एक्सट्रूशन प्रोसेस, then circular is very clear. They have mentioned कि दिस शुड कम अंडर HSN 1905. ये तो फर्स्ट 4 डिजिट है, लास्ट की 4 डिजिट 9030 कैटेगरी में आना चाहिए. एंड अगर इस कैटेगरी में आता है तो जीएसटी रेट विल बी 18%. आप रेट नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो उसमें भी क्लियरली 1905 में 18% की टैक्स रेट है. जो जो चीजें एक्सक्लूडेड है वो बहुत क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जीएसटी रेट हो जाएगी 18% if you are manufacturing FRAMs through extrusion process. But now the question is, what will happen if we are manufacturing FRAMs but not with extrusion process? हम लोग extrusion process use नहीं कर रहे, तब क्या होगा? In that case, what will be the GST rate? So in this particular case, I can say, as per my opinion, you can classify this item in the category of pellets. That comes under the HSN 1103 to 000. 1103 to 000 इस कैटेगरी में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं. कि pellets क्या होता है वहां पे भी जो डिफाइन किया, भाई इट्स अ मास, यू कैन से भाई जो भी इंग्रेडिएंट्स है, लाइक इसमें मेनली फ्लावर यूज होता है, तो फ्लावर को कंबाइन करके
ठीक है, एक शेप दिया गया, उसमें शेप इज द बैडमिंटन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ शेप इज देयर, सो इट्स इन रॉ फॉर्म, रेडी टू कुक फॉर्म, तो उसको हम लोग उस पेलेट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं 1103 2000, एंड इन दैट केस जीएसटी रेट विल बी 5%. उस केस में जीएसटी रेट 5% हो जाएगा. ओके, लेकिन जो पापड़ की क्लासिफिकेशन में सेल कर रहे थे, एज पर माई ओपिनियन दैट विल नॉट सस्टेन एनी मोर, बट द प्रॉब्लम इज बिगर बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर एंड सर्कुलर ऑलवेज हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो जो लोग अभी इसको एग्जेम्प्ट करके सेल कर रहे थे, प्रॉब्लम विल बी नाउ फ्रैम विल बी टैक्सेबल फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली इशू नोटिसेज फॉर द पास्ट पीरियड का टैक्सेशन ऑल्सो. एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर आपने इसको एग्जेम्प्ट ट्रीट किया था तो डेफिनेटली आपने आईटीसी भी इसकी क्लेम नहीं की होगी, तो प्रॉब्लम कैन बी बिगर, भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. और उस केस में सारा आईटीसी तो लॉस हो गया, बट डिपार्टमेंट विल चार्ज यू टैक्स. अब यहां पे एक ये भी चैलेंज आएगा, माइट बी डिपार्टमेंट विल इंसिस्ट फॉर 18%, might be department will say, okay, if you are not manufacturing through extrusion process, then it will not come under the category 9030. But obviously this is not papad also, so you will come in the residual category of chapter 1905, 9090 others में आ जाएगा. और अगर ऐसा होता है तब भी जीएसटी की रेट क्या होगी, 18% होगी. सो दैट कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम. लेकिन जो लोग 5% टैक्स दे रहे थे, आई think they will be in a position to defend. And a very important point, agar if anyone was paying even tax rate of 5%, at least they were availing all the ITC, वो सारी ITC avail कर रहे थे, so they will be in a better position. So it's now time to check, to do internal analysis what you should do if you are till now you were treating it as papad और आप इसको exempt की तरह treat कर रहे थे. Okay, because इस clarification के पहले तक फ्रैम्स बोल के कोई एंट्री थी नहीं रेट नोटिफिकेशन में, और नहीं कोई एचएसएन के क्लासिफिकेशन में फ्रैम बोल के कोई वर्ड नहीं था. सो व्हाट मैन्युफैक्चरर्स वे डूइंग, टैक्स पेयर्स वे यूजिंग दिस कि भाई फ्रैम बोल के अलग से कोई एंट्री नहीं है तो हम उसको बेस्ट जगह पे फिट कर देते हैं, तो उन्होंने पापड़ में वहां पे फिट कर दिया. बट अब फ्रैम बोल के, obviously FRAM has not been included in the rate notification any entry, but in clarification they have mentioned the word FRAMs, so definitely अब वो पापड़ में तो include नहीं होगा. So I can say they were very smart enough, जो लोग इसको pellets बोल के 5% की रेट पे बेच रहे थे, I feel they will be in a best position as of now कि भाई आप pellets बोल के बेच रहे थे, ठीक है, they'll continue doing so, और pellets के हेड में वो लोग taxable करेंगे. So to conclude, as per my opinion, now you can't sell FRAMs क्योंकि ये फ्रैम्स ही है, फ्रैम्स पापड़ नहीं है, तो आप इस फ्रैम्स को पापड़ बोल के नहीं सेल कर सकते. आपको टैक्स देना होगा टिल फर्दर क्लैरिफिकेशन. अगर डिपार्टमेंट कोई क्लैरिफाई कर दे कि नहीं आपको नहीं देना, देन इट्स अ डिफरेंट इशू, बट क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्कुलर, अगर आप फ्रैम एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाते हैं देन डेफिनेटली टैक्स रेट विल बी 18%, अदरवाइज टैक्स रेट विल बी 5%. आप पेलेट्स बोल के इसको सेल कीजिएगा तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा. थैंक यू सो मच.